Welcome to Waterlogs, and I'm your host Preeti Agarwal with my co-host Seema Agarwal. Yoga teaches us to flow, to cleanse, and to return to our natural state of balance, just like water does. Joining us today is someone who is a powerhouse of yogic wisdom and holistic wellness. Dr. Tanu Singh is a living, breathing testimony to the power of yoga. Wielding a master's degree in yoga, science of living, and Preksha meditation, alongside a doctorate in yoga and women's health and nutrition in Ayurveda. Dr. Tanu Singh has spent over a decade in Hong Kong promoting the practice amongst an eclectic community of citizens from all over the world. She is the author of the esteemed book Moms to Be, and has significantly contributed to various areas such as yogic diet, yoga therapy, and prenatal postnatal practices for women. Dr. Tanu is also a co-founder of Life Yoga, a premier yoga studio in New Delhi that unites various yoga disciplines under one roof. She emphasizes experimental teaching styles and draws on decades of her experience to create transformative programs that extend well beyond the mat. Dr. Tanu Singh continues to be a beacon of inspiration, guiding individuals around the world to unlock their full potential. Today, we have her here to explore the relationship between the spiritual and the mental aspect of yoga with the physical element of water. A very warm welcome to you, Dr. Tanu, to this episode of Waterlogs. And I have to share with you all that the minute she walked in, I gave her a big hug and soaked in some positive energy. So thank you so much for that too. Thank you so much. Thank you, Seema ji. Thank you for inviting me. So let's go down the memory lane, Dr. Tanu. You started your yogic journey at a very early age. I think you were only 12 years old. So, and you've also won a lot of competitions like district level, state level, national level. So how was your childhood different from the other children who were growing up at that age? थोड़ी उन दिनों की कहानियाँ बताइए. Actually, मेरी mother ने योगा को introduce किया. Okay. I'm the fourth child in my family, fourth daughter in the family. So I'm a little like premature child also. Okay. जब मैं छोटी थी तो usually I get sick. बहुत ज़्यादा like ऐसा रहता था कि 6 months I'm in the hospital and 6 months I was at home. So journey start from there. My mother, she used to do yoga. उनको खुद को योगा करने से काफ़ी फ़ायदा हुआ. हमारे घर में योगा करना कंपलसरी था. सबके लिए तो था ही, लेकिन मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा था. सो मेरी मदर के थ्रू ही मैंने योगा सीखा और कुछ ही साल करने के बाद मुझे मेरी हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुए. फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली मैं बहुत अच्छा फील करने लगी. तो वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई. लेकिन उसी के साथ साथ जब हम बच्चे होते हैं तो हमें इतना नहीं पता होता कि हम अपनी हेल्थ के लिए ये सब कर रहे हैं. करनाल से हूँ मैं. करनाल में योगा को एज अ कॉम्पिटिशन्स लिया जाता था. कॉम्पिटिशन्स होते थे स्टेट, नेशनल, डिस्ट्रिक्ट लेवल के. तो वहीं से मेरा जर्नी शुरू हुआ. जैसे ही मैंने योगा में पार्टिसिपेट किया, वहाँ से मैंने कई नेशनल अवार्ड्स जीते, स्टेट लेवल अवार्ड्स जीते. तो वहाँ से मेरा जर्नी इट्स बिगिन फ्रॉम देयर. एंड फिर तो उसके बाद मैंने बिल्कुल ब्रेक नहीं लगाया. एंड देन मैं अभी भी देखती हूँ मेरे पास अपने 9th स्टैंडर्ड के नोट्स हैं योगा से रिलेटेड. वहाँ से एक मन में आ गया कि योगा ही करना है. और उसके बाद आप जब ग्रेजुएशन में होते हो, आपका एक टर्निंग पॉइंट होता है. मैंने ग्रेजुएशन सितार में किया. वहाँ पर मेरे एक टीचर ने इंट्रोड्यूस किया कि तुमको अब इन दोनों में से एक एज अ करियर चुनना है. बिकॉज जो योगा है उसमें भी आपको बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा रियाज करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. आपको 4 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ती है. और ऐसा ही म्यूज़िक में भी होता था कि 4 से 5 घंटे अगर आप अपने म्यूज़िक को नहीं दोगे तो यू कांट डू वेल इन दैट प्रोफेशन ऑल्सो. वन ऑफ माई टीचर, आई स्टिल रिमेंबर कि टीचर का क्या रोल होता है लाइफ में. मेरे टीचर ने मुझे कहा कि
अब आपको इन दोनों में से एक को एज अ करियर चुनना है, और मैंने योगा को चुना। और ऐसा नहीं है कि मैंने म्यूज़िक को छोड़ दिया, मैं म्यूज़िक का अभी भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करती हूँ। वो मुझे एक मन की शांति देता है। योगा में तो हम मेडिटेशन करते हैं, आसनास करते हैं। सो मेरा जर्नी बिल्कुल वहीं से शुरू हुआ। योगा ने मेरे हर कदम पर मेरा बहुत बहुत अच्छे से साथ दिया। कोई ऐसा, चाहे वो प्रेगनेंसी हो, पोस्ट प्रेगनेंसी हो, या जीवन का कोई भी पड़ाव हो, योगा मेरे बेस्ट फ्रेंड की तरह हमेशा मेरा साथ देता रहे। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। उन दिनों की बात अगर करें, दूरदर्शन की बात जैसे ही शुरू होती है तो वी गेट सच फॉन्ड मेमोरीज बैक इन आवर लाइव्स। और डॉक्टर तन्नू, इट इज सेड दैट आप अपने पार्टनर के साथ यू वर द क्रिएटिव हेड्स इन द मेकिंग ऑफ तन मन। एम आई राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे आपसे पूछना ये है कि in your decades of experience of teaching yoga, what difference have you observed in the teaching practices from the yesteryears बिल्कुल as compared to what is happening today? और आपने अपने आप को उससे कैसे अडेप्ट किया? आपका बहुत बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। हमने बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे हैं, पॉजिटिव चेंजेस भी हैं। जब एज अ करियर मैंने योगा को चुना तो उस समय में कोई भी योगा को करियर नहीं चुनता था। सब लोग आके मेरी मदर को बोलते थे कि ये क्या कर रही हैं, इनको कुछ और समझाओ कि योगा में कैसे करियर आप बिल्ड कर सकते हो। इवन मेरी तीनों बड़ी बहनें भी योगा में इतना नहीं थी, तो वो भी बोलती थी कि योगा को एज अ प्रैक्टिस तो ठीक है आप ले सकते हो, लेकिन योगा को एज अ करियर कैसे आप इसको सोच सकते हो। लेकिन मुझे एक मन में विश्वास था कि मुझे तो योगा में ही कुछ करना है। वहाँ से विश्वास और बिल्ड होता गया। मैंने कई नेशनल, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि नेशनल लेवल चैम्पियनशिप जीता। उसके बाद कहीं बहुत जगह पर मैं योगा के डेमोन्स्ट्रेशंस भी देती थी। और उसके बाद हम तन मन, जो क्योंकि पहले डीडी नेशनल 1 और 2 ही उस समय में था, ऑप्शन ही नहीं थे, ऑप्शन ही नहीं थे बिल्कुल। वहाँ पर भी लगभग 2 साल मैंने योगा तन मन के नाम से एक प्रोग्राम किया। योगा को कैसे थेरेपी, योगा से कैसे अपने आप को हील किया जाता है। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया। मास्टर्स के बाद फिर मैंने पीएचडी किया योगा में। लेकिन जब हम करते थे तो उस समय में मास्टर्स भी नहीं था। मैंने मैनिफेस्ट किया, मुझे ऐसे लगता है मैंने मैनिफेस्ट किया, और जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया वो फर्स्ट ईयर था जब योगा में मास्टर्स निकला था। Wow. बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कैसे आपका रास्ता बनता जाता है। फिर उसके बाद मैंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से पीएचडी भी किया। पीएचडी में मैंने थोड़ा लंबा समय ले लिया। उसके बाद मैं योगा के काम के लिए ही अब्रॉड बाहर चली गई। बाहर उस समय में यूएस में और बाहर के देशों में योगा को काफ़ी अच्छे से देखा जाता था, और वहाँ पर हमने जाकर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ योगा को इंट्रोड्यूस किया। देखिए, वहाँ जब हमने योगा किया था तब एक ही स्टाइल का योगा होता था, दैट इज कॉल्ड hatha योगा। वहाँ की जर्नी और अब के समय में योगा के बहुत सारे स्टाइल्स हैं, बहुत सारे फॉर्म हैं। वो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छी क्रिएटिविटी है उसमें। अब के समय में योगा अलग है, अष्टांगा अलग है, विन्यासा अलग है, यिन अलग है, पावर अलग है, स्कल्प्ट अलग है। देयर आर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ योगा। सो इसमें आपकी क्या नीड है, आपको क्या चाहिए, उस डिज़ाइन का आपको सेशन मिल जाएगा। मान लीजिए किसी को योगा से अपने इमोशंस को हील करना है, तो उनके लिए देयर विल बी अ डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट स्टाइल ऑफ योगा। अगर किसी को ब्रेथ वर्क पे काम करना है तो उनके लिए मेडिटेशन एंड प्राणायाम का क्लासेस रहेगा। तो ऐसा डिवाइड करने से हमको
पूरा एक समय मिल जाता है कि हम अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हील कर सकें। किसी को मसल बिल्ड करना है, मसल बिल्ड कर सके, पीस ऑफ माइंड चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो उसको बहुत अच्छे से हमने डिफरेंट क्लासेस बनाकर उसमें हम ले सकते हैं। सो दैट इज द डिफरेंट फ्रॉम देन एंड नाउ। तो पहले हम उसको कस्टमाइज नहीं कर सकते थे, अब कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, पहले सिर्फ हथा योगा है, लेकिन अभी इतने वेरिएशंस आ गए। बिल्कुल, इवन हमारे लाइफ योगा में भी 22 स्टाइल्स ऑफ योगा है। सो अयंगर स्टाइल अलग है, अष्टांगा अलग है, विन्यासा अलग है। सो किसी की भी जर्नी अलग है, तो उसी हिसाब से हम योगा क्लासेस को देखते हैं। अब देखिए, कोई बच्चा अगर योगा क्लासेस में आ रहा है या कोई 20 इयर्स का आ रहा है, तो हम उनको बिल्कुल एकदम स्लो और ऐसा नहीं दे सकते, क्योंकि वो योगा किसी और नजरिए से देखते हैं। उनको चाहिए कि बहुत अच्छा फिजिकल वर्कआउट मिल जाए उनको, फुल ऑफ एनर्जी है, तो फुल ऑफ एनर्जी है। डेफिनेटली किसी की भी एनर्जी को हम इनहेंस कैसे कर सकते हैं, वो योगा में हमको मिलता है। वर्कआउट भी कर सकते हो आप पीस ऑफ माइंड भी ले सकते हो। किसी को वेट का इशू है, किसी को थेरेपी का इशू है, जब जो आपको चाहिए वैसे स्टाइल्स ऑफ योगा nowadays you can get it. Very और nice. उस समय में एक और चीज थी कि 100 आवर्स, 200 आवर्स, 500 आवर्स टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज नहीं थे। आपको अगर करना है तो आपको वही 4 साल लगाने पड़ेंगे, आपके 6 साल लगाने पड़ेंगे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी डिफरेंट कोर्सेज हैं, और आप ऑफ कोर्स 100 आवर्स में तो नहीं बात बनती, लेकिन आप 500 आवर्स और 800 आवर्स के डिफरेंट कोर्सेज, शॉर्ट कोर्सेज कर सकते हैं। एंड उसमें भी आप स्पेशलाइज्ड हो सकते हैं। किसी भी फॉर्म को आप स्पेशलाइज्ड बन के उसको करवा सकते हैं। जैसे विन्यासा है, आप सिर्फ यू कैन बी जस्ट अ विन्यासा टीचर, और यू कैन जस्ट बी स्पेशलाइजेशंस हो गई हैं, एग्जैक्टली, categories. कैटेगरीज हो गई हैं। सो दैट इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव डिफरेंट व्हाट आई कैन से। तो हम योगा और आयुर्वेदा के बारे में तो सब थोड़ा बहुत कुछ जानते ही हैं। बिल्कुल। ये प्रेक्षा मेडिटेशन क्या होता है, इसके बारे में हमें बताइए। बिल्कुल। देखिए, प्रेक्षा मेडिटेशन होता है अपने आप को देखना, समझना, जानना, अपनी जर्नी इंट्रोवर्ट होकर अपने आप से क्वेश्चन करना कि आप क्यों हैं, क्या है, अपने सिस्टम को रिलैक्स करना। ये सब प्रेक्षा मेडिटेशन। प्रेक्षा का मतलब होता है देखना, अपने आप को देखो। पहले औरों को, हम जैसे कहते हैं कि दूसरों को देखने से पहले, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। अपने आप को देखना, अपने भीतर झांकना कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है, आप जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, आप जीवन में क्या अचीव करना चाहते हैं। तो ऐसे हम टारगेट इसमें देखते हैं। इसका जर्नी बहुत शॉर्ट से भी और बहुत सिंपल से भी आप शुरू कर सकते हैं कि अपनी बॉडी को देखना, और हर चीज़ को देखते हुए ईश्वर का धन्यवाद करना। हर जगह पर आप मोर ग्रेटफुल व्हाट यू हैव वेयर यू आर। सो प्रेक्षा मेडिटेशन में डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशंस रहते हैं। हर किसी के लिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हर किसी की जर्नी अलग है, हर किसी का टारगेट अलग है, तो उसी के हिसाब से हर किसी के लिए इवन द मेडिटेशन की जो टेक्निक्स हैं वो भी डिफरेंट होती हैं और होनी भी चाहिए। आजकल के समय में जैसे कुछ लोग बहुत वात, हमारा वे ऑफ वर्क ऐसा हो गया कि हमारा वात बहुत ज़्यादा इनबैलेंस हो गया है, उसमें किसी लोगों को बिठाना ही बहुत बड़ा मुश्किल आ जाती है। तो उसमें हम क्या करते हैं, शुरू में थोड़े से मूविंग मेडिटेशन पोजेस करवाए जाते हैं, जिसमें ब्रेथ वर्क करवाया जाता है। उसके बाद वो धीरे 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 हम उनको सिटिंग की पोजीशंस करवाकर एक लंबा मेडिटेशन करवा सकते हैं। बहुत बढ़ गई है ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल। स्थिरता तो है ही नहीं, बिल्कुल भी स्थिरता नहीं है, तो लेकिन जो है उसी चीज़ को यूटिलाइज करते हुए, अगर स्थिरता नहीं है, ठीक है, जहाँ आपके माइंड में, पहले हम बोलते हैं कि अगर 1000 थॉट्स हैं तो पहले उसको 100 थॉट्स पे लाइए।
100 थॉट्स हैं तो 10 थॉट्स पे लाइए, अगर 10 थॉट्स हैं फिर एक थॉट पे ले आइए जो आपका ब्रेथ है। अपनी ब्रेथ को ही देखना शुरू कर दीजिए, आपकी मेडिटेशन की जर्नी शुरू हो जाएगी। हो गई। तो इसी बात पे मुझे याद आया कि जिस तरह से ध्यान और मेडिटेशन हम कहते हैं कि योगा के लिए बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो इन योगा ब्रेथ इज लाइफ, बिल्कुल। एंड इन वाटर फ्लो इज लाइफ। Exactly. तो आप हाउ डू यू सी दीज टू एलिमेंट्स कमिंग टुगेदर इन ओशन ब्रीदिंग? आई थिंक उसे उज्जयी प्राणायाम भी कहते हैं। बिल्कुल। और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, और ऐसे कौन से और मेडिटेशन है जो पानी से कनेक्टेड है योगा में? देखिए, योगा और नेचर जैसे अभी आप पानी की बात कर रहे हैं, प्रकृति चिकित्सा होता है और प्रकृति में हमारे पास 5 एलिमेंट है। ऐसा बोला जाता है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो बाहर है वही हमारे भीतर भी है। बाहर 5 एलिमेंट्स हैं, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी। ये पूरी प्रकृति जो बनी है इन 5 एलिमेंट से बनी है, और इन्हीं 5 एलिमेंट से ही हमारी भी बॉडी बनी है। और ये भी देखिए कितनी ब्यूटीफुली है कि बाहर भी पानी बहुत ज़्यादा है और भीतर भी पानी बहुत ज़्यादा है। और पानी को बैलेंस करने के लिए योगा में बहुत ही सुंदर आसनास, प्राणायाम, बंधास क्रियाज, इवन योग निद्रा की कई ऐसी क्रियाज हैं जो हमारे वाटर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए की जाती हैं। उनमें से एक जो भी आपने कहा, उज्जयी ब्रेथ, ओशन ब्रेथ। देखिए, ओशन ऊपर से बहुत चंचल दिख सकता है, लेकिन ओशन पानी जो अंदर है वो बहुत गहराई में शांत है। स्टिल वाटर्स रन डीप। बिल्कुल। ऐसा बोला जाता है कि, और हम ऐसे बोलते भी हैं कि इस इंसान में बहुत गहराई है। गहराई का मतलब पानी का जो ठहराव होता है वो हमारे जीवन में होना चाहिए। ओशन ब्रेथ जो है, और भी बहुत अच्छी योगा में, हमारे प्राणायाम में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं जिससे हम अपने वाटर एलिमेंट को बैलेंस कर सकते हैं। योग का डेफिनेशन यही है, जो भी चीज़ है उस चीज़ को बैलेंस कर देना, ठीक है। सो वाटर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए हम ओशन ब्रेथ करते हैं। ओशन ब्रेथ करने से हमारा जो थ्रॉट चक्रा होता है वो अच्छे से काम करना शुरू करता है। हमारा जो इमोशनल बॉडी है, वाटर एलिमेंट के साथ सबसे स्ट्रांगली क्या जुड़ा हुआ है? इमोशंस। बिल्कुल। अगर हम, और इमोशंस किससे साथ जुड़े हुए हैं? मून के साथ, राइट। सो अब मून का जो सबसे ज़्यादा असर पड़ता है वो पानी के ऊपर पड़ता है। पूर्णमासी अमावस्या को पानी बिल्कुल उसका ठहराव, उसका बहाव बिल्कुल चेंज हो जाता है। और उसी की तरह से हमारे इमोशंस हैं। अगर हमने मून के साथ वाटर को बैलेंस करना शुरू कर दिया तो हमारे इमोशंस धीरे धीरे अपने आप बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। और उसके लिए हम ब्रीदिंग टेक्निक्स करवाते हैं। ब्रीदिंग टेक्निक में शीतली प्राणायाम है, शीतकारी प्राणायाम है, जैसे अभी आपने उज्जयी ब्रेथ बोला, उज्जयी ब्रेथ है। ये क्या करते हैं? ये तीनों प्राणायाम हमारे इमोशनल बॉडी के ऊपर काम करते हैं। और जैसे ही हमारे इमोशनल बॉडी बैलेंस होना शुरू हो जाती है, वैसे हम अपने लाइफ में काफ़ी चेंजेस देखने शुरू कर सकते हैं। वाओ, दैट इज सो पावरफुल। बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छे से बताया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह योगा के लिए सांस लेना ज़रूरी है, बिल्कुल उसी तरह सही सांस लेना ज़रूरी है, उसी तरह सही खाना खाना भी ज़रूरी है। बिल्कुल। And you are an acclaimed Ayurveda nutritionist. बिल्कुल। And you strongly believe that diet and yoga go hand in hand. बिल्कुल। इन दोनों का क्या रिलेशनशिप है, ये आप हमें बताइए। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि अर्ली माई एज, कि अगर मैं सिर्फ योगा करती और या मेरी मदर मुझे सिर्फ योगा इंट्रोड्यूस कराते और मेरे डाइट का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, तो मुझे नहीं लगता कि वो बेनिफिट मिल पाता मुझे जो मैं देख सकती हूँ अपने अंदर। डाइट और योगा तो बिल्कुल हमारा कॉम्बिनेशन ही है।
एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक को अगर आप फॉलो करेंगे और दूसरे को नहीं करेंगे तो हमारी प्रैक्टिसेस नहीं हो सकती हैं। जैसा आपका भोजन होगा वैसा आपका मन होता जाएगा। अगर किसी को मेडिटेशन करना है, जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है कि अगर किसी को मेडिटेशन या योगा की प्रैक्टिस करनी है, इवन उनको किसी तरीके का भोजन करना भी नहीं चाहिए। जैसे गार्लिक एंड ऑनियंस को भी अवॉइड किया जाता है। योगा हमको इंटरनली हील करता है और जो आयुर्वेदा है हमको बाहर से हील करता है। दोनों को एज अ थेरेपी अगर लेते हैं तो आप अपनी बॉडी को अच्छे से हील कर सकते हैं। वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ दैट लिस्ट। बिल्कुल। और हमारी बॉडीज, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस नो दैट इज मेड ऑफ ऑलमोस्ट 65% वाटर। बिल्कुल। तो फ्रॉम एन आयुर्वेदिक परस्पेक्टिव, बिल्कुल, हाइड्रेशन का या लैक ऑफ हाइड्रेशन का हमारी बॉडीज पे क्या असर होता है? बिल्कुल। आपने एक शब्द आजकल बहुत कॉमन है, इन्फ्लेमेशन, राइट? बिल्कुल। इन्फ्लेमेशन कैसे होता है? इन्फ्लेमेशन होता है कि हमारे बॉडी के अंदर वाटर एलिमेंट अगर बिगड़ गया है तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाता है। अच्छा। हमारा जो टेस्ट है, हमारे जो भाव हैं, वो इवन जो टेस्ट है वो वाटर एलिमेंट को ही रिप्रेजेंट करता है। वो हमारा वाटर एलिमेंट से ही बना है। इवन हमारे मसल्स हैं और हमारा जो स्वेट है या हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये सारा सिस्टम, हमारा किडनीज है, ये सारे जो सिस्टम्स हैं ये वाटर एलिमेंट को ही रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारी बॉडी में वाटर एलिमेंट बैलेंस होना शुरू हो जाता है, अगर कोई वाटर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन की क्रियाएं या आसनास, बंधास, जो भी योगिक क्रियाएं हैं वो करना शुरू कर देता है, तो बिना जाने उनका वाटर एलिमेंट बैलेंस होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हमारी बॉडी में वाटर एलिमेंट इनबैलेंस हो जाता है तो सबसे पहला उसका असर हमारी नींद पे पड़ता है। Really? फिर हमारी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है उसके ऊपर इसका फर्क पड़ता है। तीसरा हमारे जॉइंट के ऊपर फर्क पड़ता है, फिर हमारा किडनीज के ऊपर फर्क पड़ता है। तो वाटर इज द मोस्ट, वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कीपिंग द लाइक वाटर इन द बैलेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आयुर्वेद में बोला जाता है कि आप क्या ले रहे हैं ये तो इम्पोर्टेंट है ही, आप कैसे ले रहे हैं ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम सब आजकल इस दौड़ में हैं कि क्या लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, लेकिन आयुर्वेदा का तो पहला प्रिंसिपल है कि कैसे लेना चाहिए। बिल्कुल। हम वाटर को कैसे लेते हैं, हम लाइफस्टाइल में वाटर एलिमेंट को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, ये जानना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब कोई चीज़ हमारी बॉडी में 65% और 70% है तो वो और केयर मांगती है। हाँ। और उसके बारे में हमें और अच्छे से जानना चाहिए। डॉक्टर तनु, आई हैव सीन पीपल अक्रॉस कल्चर्स जो बैठ करके पानी पीते हैं। बिल्कुल, है ना? हाँ जी। तो सवाल ये है कि इज इट गिविंग अस बेटर बेनिफिट और इज इट अ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स वाटर, और या कोई इसके पीछे कोई साइंस है? मैं अगर बोलूं कि इसके पीछे तीनों ही चीज़ें हैं, रिस्पेक्ट भी है, साइंस भी है, इंटेंशन भी है, ये सब चीज़ें इसके पीछे हैं। और देखिए हमारे यहाँ से किसी भी चीज़ को निकाल के देखिए, इवन देखिए अब मैंने बिंदी थोड़ा ऊपर लगाया हुआ है या हमने हाथों में ज्वेलरी पहनी है, हर चीज़ के पीछे साइंस है। पाँव में चांदी क्यों पहना है, उसके पीछे साइंस है। हर चीज़ के पीछे साइंस है। और पानी तो देखिए 65-70% इतना हमारी लाइफ में है कि हम बोलते हैं कि बिना भोजन के तो आप 2 महीने आराम से रह सकते हो, बिना पानी के नहीं। बिना पानी के आप 2 दिन मुश्किल हो जाता है। और इसके साथ आता है कि बिना व्रत के तो आप बिल्कुल कुछ ही मिनट के लिए रह सकते हो, राइट? तो जो हम बैठकर पानी पीते हैं वो एक रिस्पेक्ट भी है। और दूसरा, अगर हम बिल्कुल गल्प करके एकदम पानी पीते हैं तो वो हमारी बॉडी को हाइड्रेशन नहीं देता, वो प्रॉपरली डिटॉक्स का काम भी नहीं करता। तो वो आपका ये पानी पीने के पीछे अब ये कि आपका इंटेंशन क्या है। आप पानी है, आप पानी को पीते हो, आपका इंटेंशन सबसे पहले बताइए क्या है।
किसी का इंटेंशन हो सकता है कि मेरे को पानी से केवल अपनी प्यास बुझानी है, राइट। किसी और का इंटेंशन हो सकता है कि पानी से मुझे डिटॉक्स करना है अपनी बॉडी को, राइट। और तीसरा, पानी से हमको कितने मिनरल्स, कितने न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। बिल्कुल। अगर आपका इंटेंशन है कि आपको आपकी बॉडी को हील करना है, डिटॉक्स करना है, तो योग में ऐसा भी बोला जाता है कि मालासन में बैठकर सुबह हमको पानी पीना चाहिए। उससे हमारा पर्पस हो जाएगा कि हम बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हैं, राइट। और अगर हम कुछ इन्फ्यूज्ड वाटर पीते हैं, कुछ हर्ब्स डाल के पानी पीते हैं, तो वो हमारी बॉडी में वात पित्त कफ को बैलेंस करता है। और अगर हम सिर्फ प्यास बुझाने के लिए पानी पी रहे हैं तो आप वो किसी भी पोजीशन में पी सकते हैं, उसमें कोई हार्म नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर तनु, योगा एंड वाटर आर कनेक्टेड इन मोर देन वन वेज, यू नो, जैसे फ्लो है, फ्लूइडिटी है, अडेप्टेबिलिटी है, और ये सब हम योगा पोजेज में भी देखते हैं। बिल्कुल। तो आर देयर एनी योगा पोजेज दैट वर फॉर्म्ड इंस्पायर्ड बाय वाटर? बिल्कुल। देखिए, हमारी बॉडी में, जैसे हम सब जानते हैं कि मोर देन 65% से भी ज़्यादा हमारी बॉडी में पानी है, और योग में भी हम पांचों एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए डिफरेंट आसनास किए जाते हैं। जो हमारा इमोशनल बॉडी है या वाटर एलिमेंट है, वो हमारे स्वादिष्ठान चक्र से, जो हमारे नेवल पॉइंट से थोड़ा सा नीचे है, वहाँ से कनेक्टेड है। अच्छा। और जैसे अभी आपने कहा कि वाटर एलिमेंट हमारी क्रिएटिविटी को दिखाता है, हमारे इमोशंस को बैलेंस करता है। अगर हम अपने लोअर बॉडी के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं तो हम अपने वाटर एलिमेंट को बैलेंस कर लेते हैं। वाटर रिटेंशन हो गया, या कोई भी ऐसे प्रैक्टिसेस हो गए, इमोशनल रिलेटेड प्रैक्टिसेस हो गए, क्रिएटिविटी से रिलेटेड प्रैक्टिसेस हो गए, अगर हम उन सबको बैलेंस करना चाहते हैं तो हमारे योग में जैसे पश्चिमोत्तानासन है, जानुशीर्षासना है, मलासना है, विपरीत करणीय आसना है, जो हमारे वाटर एलिमेंट को बैलेंस करता है। और बहुत क्लियरली बोला गया है कि वाटर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए अपने बॉडी में ये आसनास कीजिए। आपके एयर एलिमेंट और आपके फायर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए डिफरेंट आसनास का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल कनेक्टेड है, इसमें तो कोई, और हमारा इवन कई हमारे मंत्रों का उच्चारण भी वाटर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए किया जाता है। वाव वाव। तो जैसे इंस्पिरेशन फ्रॉम वाटर है, उसी तरह से आई थिंक फिजिकल फॉर्म भी पानी का बहुत यूज़ किया जाता है योगा में, जैसे कि क्रियाएं हैं। तो बहुत साल पहले मैंने जल नीति क्रिया ट्राई किया था। बिल्कुल। पर यू विल नॉट बिलीव, मुझसे नहीं हुआ। It's a very simple kriya. We all know it's a very simple kriya, but I just could not do it. So देखिए, अब आप बोल रहे हैं कि मैं नहीं कर पाई, हाँ, राइट, क्योंकि वाटर एलिमेंट के साथ सबसे ज़्यादा हमारे इमोशंस, फियर्स, ये सब जुड़े हुए हैं। हाँ, हम अपने वाटर एलिमेंट को बैलेंस करना शुरू कर देते हैं तो वो हमारे फियर्स भी निकलना मतलब बॉडी से निकलना शुरू हो जाते हैं, हटना शुरू हो जाते हैं हमारे लाइफ से। बिल्कुल, बिकॉज मेरे ख्याल से वो मेरी पैरानोया ही थी, that didn't allow me to. एग्जैक्टली। देखिए, कई लोग बिल्कुल स्विमिंग पूल में जा ही नहीं सकते, तो वो पानी का डर नहीं है, वो इमोशनल हेल्थ है। इमोशनल हेल्थ के बारे में अगर हम काम करना शुरू कर देंगे तो हमारे जो ऐसे फियर्स हैं हम उस पे भी ओवरकम कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो ऐसी और कौन सी क्रियाएं हैं योगा में जो पानी यूज करते हैं, और उनमें पानी का क्या रोल है? नेचुरोपैथी में भी, आयुर्वेदा में भी और योगा में भी, जैसे अभी आपने योगा की क्रियाज के बारे में बात किया, ये प्री एक्सरसाइजेज मानी जाती हैं कि किसी आसनास को करने से पहले या किसी भी चीज़ को करने से पहले हम क्या करते हैं, शुद्धि करते हैं। बिल्कुल, राइट। और शुद्धि करने के लिए आयुर्वेद में भी, योग में भी पानी को सबसे इम्पोर्टेंस दी गई है। जो शुद्धि क्रियाज हैं उसमें जलनेति, जो हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे साइनस को ठीक करने के लिए, जिसमें हम एक नॉस्ट्रिल से पानी डालते हैं और दूसरे नॉस्ट्रिल से पानी को निकालते हैं, उससे हम आपका अपर बॉडी, अपने साइनस के लिए, अपनी आँखों के लिए, अपने नॉस्ट्रिल के लिए, कानों के लिए, इवन फॉर द ब्रेन फॉग के लिए हम ये क्रिया करवाते हैं। इसके साथ साथ कुंजल क्रिया है। कुंजल क्रिया में बहुत सारा पानी पिलाते हैं, इनफैक्ट बहुत सारा पानी पिलाते हैं, और फिर उसको वमन करते हैं, उसको निकालते हैं। तो निकालने से हमारा जो कफ
है या हमारा पित्त दोष है और हमारा कफ है, हमारे लंग्स के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए, हम अग्नि तत्व को बैलेंस करने के लिए ये कुंजल क्रिया करवाते हैं। इसके साथ साथ शंख प्रक्षालन और लघु शंख प्रक्षालन, कितना अच्छा नाम है। देखिए जैसे शंख होता है, शंख में अगर पानी डालिए वो कैसे घूम के निकलता है, वैसे ही शंख प्रक्षालन क्रिया है कि इसमें भी हम बहुत सारा पानी पीते हैं और उसके साथ साथ हम डिफरेंट ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ डिफरेंट आसनास को परफॉर्म करते हैं, जिसमें मोस्टली ट्विस्टिंग एक्सरसाइजेज रहती हैं। जितना हम ट्विस्ट करते हैं तो बॉडी डिटॉक्स होता है, फिल्टर होता है। उसको करने के लिए वाटर थेरेपी के लिए शंख प्रक्षालन और लघु शंख प्रक्षालन क्रियाज करवाई जाती हैं। डॉक्टर तनु, हाइड्रेशन विथ वाटर, इंस्पिरेशन विथ वाटर, और अब जो मैं पूछने जा रही हूँ, आपने अभी ज़रा सी देर पहले कहा कि लोग पानी से भय रखते हैं, डरते हैं, पर स्विमिंग पूल में जाने से डरते हैं। व्हाट अबाउट योगा इन वाटर, और आपके क्या थॉट्स हैं ऑन एक्वा योगा? देखिए पानी जो जैसे हम बात कर रहे हैं, एकदम इमोशनल बॉडी को तो रिलैक्स करता ही है, पानी हमारी मसल्स को भी रिलैक्स करता है। जो हमारी कैपेसिटी है फ्लेक्सिबिलिटी की, वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है पानी में, और हमारा मन बहुत जल्दी से शांत होता है। अगर हम पानी के अंदर कुछ योगा आसनास करते हैं या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो उसका डेफिनेटली थोड़ा अच्छा ज़्यादा असर पड़ता है, आप और अच्छे से रिलैक्स हो पाते हैं। तो यही इंटेंशन करके अगर हम आसनास को, डिफरेंट स्ट्रेचेस को अगर हम पानी में करते हैं, और इवन पानी के सर्फिंग पर बैलेंसिंग पोजेस किए जाएं तो और आपके एफर्ट लगते हैं। सो ये सब जो चीज़ें अगर हम पानी के साथ करते हैं वो थोड़ा सा और ज़्यादा पुश मांगती हैं, लेकिन डेफिनेटली वो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी यूज़फुल रहता है। कभी कभी इजी लगता है, पानी में कुछ मूवमेंट्स हो जाती हैं जो नॉर्मल में नहीं होती हैं। बिल्कुल, तो फील गुड फैक्टर भी आ जाता है कि नहीं होता है। बिल्कुल और आपकी मसल्स भी टायर्ड नहीं होती, सोर नहीं होती। तो अगर हम पानी के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं तो हमारा उससे मन भी शांत होता है, मसल भी शांत होती हैं और शरीर भी शांत होता है। What about the music, the sounds of water? क्या आपने कभी वो यूज़ किया है अपने किसी योगा सेशन में या मेडिटेशन सेशन में, just sounds of water? बिल्कुल, सबसे ज़्यादा हमारे लाइफ योगा में एक सेशन रहता है जिसको बोलते हैं साउंड हीलिंग। डिफरेंट साउंड के साथ हम लोगों को हील करवाने की कोशिश करते हैं। और अभी हम एक रिट्रीट लेकर जा रहे हैं अंडमान्स में। अच्छा। एंड अंडमान्स में पानी है, बिल्कुल हमने पूरा बीच बुक किया है और वहाँ पर हम पानी के साथ साउंड हीलिंग को जोड़ेंगे। और इसका नाम भी है श्रुति शक्ति, पानी की साउंड से अपने आप को हील करना। पानी सबसे जल्दी हमको हील करता है, तो उस रिट्रीट में साउंड हीलिंग रहेगा, पानी रहेगा और उसमें योगा किया जाएगा तो बॉडी को हील करने के लिए। आपने तो मेरे सवाल पूछने से पहले ही उसका जवाब दे दिया है। क्योंकि मैं आपसे इसी कड़ी में यही पूछने वाली थी कि पानी के आसपास योगा का क्या असर होता है वर्सेस इंडोर्स, उसका प्रभाव ज़्यादा होता है या इंडोर्स करने का प्रभाव ज़्यादा होता है, यही मेरा सवाल था। बिल्कुल, हम जितना नेचर के पास रहेंगे उतना जल्दी हम हील करेंगे। सो पानी नेचर है, नेचर का एलिमेंट है, तो जितना हम पानी के पास रह पाएंगे रहेंगे। और देखिए एक पानी का साउंड कैसे भी, चाहे ऊपर से डालो चाहे नीचे से डालो, कभी भी पानी की आवाज़ तेज़ या कम हो सकती है, लेकिन पानी की कोई भी आवाज़ किसी को चुभती नहीं है। बिल्कुल। कैसे कोई भी आप पानी की आवाज़ उठा के देख लीजिए, पानी की कैसी भी आवाज़ होगी वो आपको हील ही करेगी। सो ये पानी वाटर एलिमेंट की ब्यूटी है। लवली, थैंक यू। डॉक्टर तनु, वी आर लिविंग इन द टाइम्स वेयर एवरीथिंग हैपन्स ऑन द डेस्क। जी। और कोविड टाइम्स के बाद तो ये चलन सा बन गया है वर्किंग फ्रॉम होम का। हाँ जी। तो आप ये बताइए कि व्हाट आर द योगा पोस्चर्स
which can help a person who is seated on the chair practically the whole day. बिल्कुल How can he benefit by those postures? बिल्कुल And अपने आप को थोड़ा बहुत तो रिचार्ज कर सके कम से कम. बिल्कुल बिल्कुल सबसे पहले हम अगर जो जैसा भी हम जॉब कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, हमें बार बार उठने की आदत डालनी पड़ेगी. 45 मिनट्स के बाद 40 मिनट्स के बाद तो आपको उठना ही उठना है. दूसरा, अगर आप बैठे हुए हैं तो बहुत सुंदर ब्रीदिंग टेक्निक है, मैं इसको अंतर यात्रा बोलती हूँ. वेर एवर यू आर, आप अपने ब्रेथ पे ध्यान लगाना शुरू कर दीजिए. माइंड में क्लैरिटी आना. देखिए, फिज़िकल पॉस्चर या फिज़िकल मूवमेंट, सिर्फ फिज़िकल बॉडी ज़रूरी नहीं है, हमारे थॉट्स भी क्लियर होने चाहिए. हमारे माइंड में जो फॉग आता है उसको भी रिमूव करने की ज़रूरत है. हम अगर डेस्क पे बैठे बैठे थके हैं तो फिज़िकली तो हम थक ही रहे हैं, लेकिन मेंटली भी हम थक रहे हैं. तो अगर आपका कुछ, और मोस्टली सबका ज़्यादा आजकल मेंटल वर्क ज़्यादा है, उसको रिलीज़ करने के लिए आप अपने ही डेस्क पर डिफरेंट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. थोड़े से स्ट्रेच, आपके थोड़े से ट्विस्ट एंड स्ट्रेच भी आप कर सकते हैं. एंड थोड़ी देर के लिए आप अगर 45 मिनट्स में एक नियम बना लीजिए कि 1 मिनट के लिए बिल्कुल साइलेंट, कनेक्ट विद द फ्लोर, बिल्कुल शांत होकर बैठ जाइए. तो वो बहुत बहुत इस सिर्फ 1 मिनट का ये वाले प्रैक्टिस ने मेरे लाइफ में काफ़ी चेंजेस दिए हैं. तो मैं चाहती हूँ कि हमारी ऑडियंस भी ऐसे छोटी छोटी प्रैक्टिसेस करे. थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है कि मुझे थोड़ा उठना है. हाँ, सिंपल सी चीज़ है, बस बिल्कुल करने की बात हाँ, है. आपको इग्नोर नहीं करना. हेल्थ को इग्नोर करके कुछ भी किया तो उसका कोई लाभ नहीं है. That is true. डॉक्टर तनु, एक कोई ऐसा इंटरेस्टिंग सा कुछ टिप या इंटरेस्टिंग सा एक मैसेज अगर आप देना चाहें हमारे लिसनर्स को. मैं पानी से रिलेटेड ही देना चाहूँगी. थैंक यू. पानी आयुर्वेद में बोला गया, अगर आप अपने आप को हील करना चाहते हैं, पानी को गर्म पीना शुरू कर दीजिए. पानी, गर्म पानी से बड़ी औषधि नहीं है. पानी, उसमें आप कुछ इन्फ्यूज़ भी कर सकते हैं, कुछ डाल सकते हैं. पानी को जितना गर्म पिएंगे उतना आपकी बॉडी के लिए अच्छा होगा. और दूसरा, नहाना ठंडे पानी से शुरू कर दीजिए. अच्छा. जितना ठंडे पानी से हम नहाएंगे, हमारे हार्मोन बैलेंस होंगे, हमारे बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा, हमारी मसल्स अच्छे से काम करेंगी. ठंडा पानी से नहाने से काफ़ी रोग दूर होते हैं. सो ये जस्ट 2 मैसेजेस. पहले ज़माने में सब नहाते ही ठंडे पानी से थे पहले. बिल्कुल. अभी फिर से वो चलन आ गया है, लोग कोल्ड प्लंज करना शुरू कर दिए हैं, आइस बाथ करना शुरू कर दिए हैं. लेकिन और उसमें भी देखिए कितना ब्यूटीफुली बताया गया कि नहाना भी कैसे है. पहले आपके हाथ टिप होने चाहिए. इट्स गुड फॉर द हार्ट. ठंडे पानी में. अब छोटा सा प्रैक्टिस है, लोगों को माइग्रेन का इश्यू है, राइट. कुछ नहीं करना आपको, बिल्कुल ठंडे पानी में आपको थोड़ी देर के लिए हाथ डिप कर देने हैं. 3 मिनट के लिए अगर आप कर सकते हैं तो आप देखिए किसी भी तरीके का हेडेक है, माइग्रेन है, मसल में पेन है या एंजाइटी है, एकदम कैसे जाएगा आपको भी नहीं. ओ, ये तो बहुत ही हैंडी टिप है. ब्यूटीफुल. हाँ जी. तो एक हमारा रैपिड फायर राउंड क्वेश्चन. अरे वाह. तो देयर इज नो राइट और रॉन्ग हाँ आंसर. जी. जो आपके मन में आए आप पहले बोल दीजिए. बिल्कुल बिल्कुल. तो लेट्स हैव सम फन. बिल्कुल. तो वार्म वाटर और कोल्ड वाटर. अरे वार्म वाटर ऑलवेज. वार्म वाटर तो मेडिसिन की तरह काम करता है, वार्म वाटर ही लेना चाहिए. ओके. सनराइज योगा बाय द बीच और मूनलाइट मेडिटेशन बाय द लेक. सनराइज meditation Okay. or a yoga practice in the beach. Okay. Copper vessel or clay pot. Copper vessel. Okay. Hot yoga or aqua yoga. Aqua yoga. Okay. So your go-to drink after a yoga session. I think herbal teas. It's the one of the my answer. Okay. And can you hold your breath longer in a yoga pose or underwater? In a yoga pose, because I practice a lot. Sorry. Of course. Asanas or meditation? आसनास प्रैक्टिस, लेकिन अभी मैंने रिसेंटली मेडिटेशन शुरू किया है एंड आई फील सो गुड अबाउट दैट.
How nice, beautiful. And thank you so much for taking out time and joining us on Waterlogs today. Thank Your you. conversations really made it very enriching. So Thank you you. so much. Thank you everyone for joining in and for listening to Waterlogs. Stay tuned, know your water, love your water. Cheers.